Welcome to all, another fresh day. I am Someranjan Nayak, assistant professor in mechanical department at Vedant Institute of Technology. आज you all know that we are continuing the transmission system. The first part of transmission system, clutch, already over. The second part of transmission system automobile, the gearbox. I already discussed the types of gearbox. Go to my previous video and learn from there. Today we are going to study about the third part of the transmission system, is the propeller shaft. What's happened in the clutch system? The clutch system only help to transmit the torque and power from the engine through the flywheel. Then accordingly to the requirement of the driver, the maintenance or balance torque and power get transmitted by means of gearbox. That means the controllable torque and power get transmitted and controlled by gearbox. That power again transmitted to the differential or rear axle with the help of propeller shaft. That is the third component of the transmission system. So the propeller shaft, what do you mean propeller shaft? It is that system in the transmission part, or it is that part in the transmission system where the torque is just transmitted from the gearbox into the differential. Okay, and from the differential it moves to the rear axle. The main things about this propeller shaft is that it's connected by means of universal joint or Hooks joint. From the gearbox one end means the output shaft of the gearbox. The output shaft of the gearbox, that is, one is driving, one is driven shaft. So the output shaft is the gearbox, the driven shaft of the gearbox, where the torque is just get output. But from the input shaft, it getting the power from the clutch. The output shaft is just connected by means of universal joint to the propeller shaft. And finally, the output part of the propeller shaft is connected to the differential by means of the pinion arrangement, pinion and the gear arrangement, which I will discuss in the next class. So what do you mean by propeller shaft? The component which is used to transfer torque from the gearbox to rear axle or differential is called propeller shaft. अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसी चीज को कि गियर बॉक्स से लेके डिफरेंशियल तक जो थर्ड कंपोनेंट है, जो कनेक्टेड है, यूनिवर्सल जॉइंट है, उसको हुक्स जॉइंट कहते हैं. तो उसी हिसाब से उसको प्रोपेलर शाफ्ट कहा जाता है. ओके, वही थर्ड कंपोनेंट है, उसी का डेफिनेशन लिखा गया है. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर द कैरेक्टरिस्टिक द प्रोपेलर शाफ्ट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट टू द डिफरेंशियल. ये मैं कह चुका हूं कि आउटपुट शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक जो पावर ट्रांसमिट होता है वो प्रोपेलर शाफ्ट करता है. इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट. नेक्स्ट इज देयर आर नो और वेरी फ्यू पावर लॉसेस. Power losses is always depend upon the friction, the amount of friction lining or amount of friction surfaces that we already discussed. That in clutch plate or the clutch system may be manual or automatic. In the gearbox system, may be manual or automatic, we have the friction lining or the friction plate. And if you compare with the propeller shaft, the friction lining or the friction part of the friction surfaces is very less in propeller shaft if compared with the means of clutch and gearbox. That means the friction is more in the clutch and gearbox. So if the friction is more, the power loss also more. In propeller shaft, the friction is very less or minimized friction loss due to the joints of universal joints, and only a shaft is there. There is no friction lining or friction plate available in the propeller shaft. I will discuss by means of a figure and animated video in the further. So that's why if there is very less frictionless or very less minimize of friction, the power loss also very less. Next is the shaft can adjust itself while the vehicle runs through obstacles such as speed breaker. It is the most important function of the propeller shaft. Shaft will be automatically adjust itself by means of any angular displacement when a vehicle is run on the road. इसका मतलब यही है कि अगर एक शाफ्ट मूव, मतलब एक व्हीकल मूव कर रहा है, बीच में अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, उसका एंगल थोड़ा बड़ा है, तो व्हीकल पहले अप को जाता है, उसके बाद डाउन को जाता है. डिचेस आ गया तो पहले डाउन को जाता है, अप को. वहां पे क्या होता है ना, टोटली जो बॉडी फ्रेम होता है ना व्हीकल का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर चेंजेस होता है. प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है ना, उसी एंगुलर चेंज में भी अपने आप को एडजस्ट करके काम करता है. ओके, so that is the main function of propeller shaft. By means of any type of displacement on the road, in angular displacement, it will adjust by means of itself. That is the main function of the propeller shaft. Next, how it is going to get function. Another thing is the torque and power get transmitted to the propeller shaft is maximum if you compare to the clutch and gearbox, because the amount of in amount of the torque and power get transmitted in clutch or the gearbox
some amount of torque and power get losses by means of friction losses. But where the amount of torque we can able to get, the power we get in the propeller shaft is never get lost so much because the friction is minimized, the power losses is very minimized, for the efficiency is high. That means the torque transmitted to the output to the differential is maximum. Next is, there is two type of propeller shaft. Simple, there is two type of propeller shaft we are generally used in the automobile. One is single piece type propeller shaft, one is double piece propeller shaft. In single piece propeller shaft, what happens? There is two universal joint and one slip spine joint. So what is slip spine joint? I will discuss in the diagram. So I already discussed what is slip. Slip means what? Any shaft containing the groups that is parallel to each other. मतलब एक shaft है, अगर उसमें parallelly groups होगा, groups मतलब जो spline shaft होता है, अगर वैसा होता है तो उसको कहते हैं slip shaft. जो मैं डिस्कस किया था क्लॉच में, वहां पे जो शाफ्ट होता है वो स्लिप स्लैट में होता है. स्लिप स्लैट मतलब वहां पे जो डिसएंगेज, एंगेजमेंट या मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड बहुत ही इजी होता है. स्लिप स्लैट में क्या होता है ना, फ्रिक्शन लेस होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ स्प्लाइन्स आर देयर और नंबर ऑफ स्लॉट्स आर देयर हॉरिजॉन्टली, जस्ट लाइक स्पॉर गियर, just like spur gear. Okay, in a single piece type what happens, there are two universal joint, one slip spine joint. स्लिप स्प्लाइन जॉइंट मतलब स्लिप तो मैं बोल दिया, वो स्लैप में वो जो छोटा सा शाफ्ट है वहां पे कनेक्ट हुआ है प्रोपेलर शाफ्ट में, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल स्प्लाइन कॉट होगा. लेकिन उसके बाद और एक वर्ड है स्प्लाइन जॉइंट. स्प्लाइन जॉइंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांशन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड कंप्रेसिबल टूल. इसका मतलब कॉम्पेंसेशन टूल. इसका मतलब ये कि प्रोपेलर शाफ्ट को अदरवाइज हम कॉम्पेंसेशन टूल कहते हैं. कॉम्पेंसेशन टूल मतलब मैं जो बताया कि सबसे मेन फंक्शन प्रोपेलर शाफ्ट का यही है कि गाड़ी किसी भी एंगल में चेंज होता है ना रास्ते में, तो ऑटोमेटिकली प्रोपेलर शाफ्ट अपना काम करता है, अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर लेता है. ओके, वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वो कैसे होता है? ड्यू टू दिस स्लिप स्प्लाइन जॉइंट. स्लिप का मतलब तो हॉरिजॉन्टल स्प्लाइन है और स्प्लाइन का मतलब ये है कि जो अपने आप अपने पोजीशन को एंगल चेंज के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए उसको कॉम्पेंसेशन टूल कहते हैं. कॉम्पेंसेशन टूल मीन अपने आप को एडजस्ट करना विथ मीन्स ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट. हाउ इट इज हैपन? ड्यू टू दिस स्प्लाइन जॉइंट. नेक्स्ट इज एंड वन ट्यूबुलर शाफ्ट. एक ट्यूबुलर शाफ्ट होता है जो कनेक्टेड होता है स्प्लाइन जॉइंट के साथ. वो कंप्लीट हो गया, एक यूनिवर्सल जॉइंट होगा, मतलब दो यूनिवर्सल जॉइंट या हुक्स जॉइंट, एक स्प्लाइन शाफ्ट होगा, उसके बाद एक ट्यूबुलर शाफ्ट होगा. ये कंप्लीट कनेक्टेड अगर हो जाएगा, कंप्लीट चीज को हम प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं. उसके अंदर जॉर्नल से, बियरिंग से, कैप से, डॉस्ट कैप है, वो एक असेंबली चीज है और एसेसरी चीज है. लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है? यूनिवर्सल जॉइंट, टू यूनिवर्सल जॉइंट, one tubular shaft, one spline joint or one slip joint in a single piece type propeller shaft. In single piece type propeller shaft, where it is going to get apply in the very short transmission system. Short transmission system means if the vehicle length is not so much high. Okay, the frame body structure of vehicle not high. That means the light vehicles, four-wheeler light vehicles or more than four, but light vehicles you can able to use, such as cars. And it's also used in widely in the front and four-wheel drive. Four-wheel drive means what? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब चेसिस बॉडी फ्रेम पढ़ाया था. तो उस टाइम पे क्या था? फोर व्हील ड्राइव मतलब ड्राइव सिर्फ रियर एक्सिल को नहीं, फ्रंट एक्सिल को भी जाएगा. वहां पे दो सिस्टम होगा. गो टू माय प्रीवियस वीडियो टू वॉच दैट ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ मेन चेसिस बॉडी एंड फ्रेम वीडियो. वहां पे डिटेल्स में मतलब समझाया था फोर व्हील ड्राइव क्या है और टू व्हील ड्राइव क्या है. तो यहाँ पे लिखा गया है कि such as cars and is also used widely for front and four wheel drive. That means rear axle, one is rear axle drive, one is front axle drive, one is four wheel drive. मतलब एक साथ चार व्हील को ड्राइव जाएगा, एक साथ पीछे को ड्राइव जाएगा, एक साथ आगे को ड्राइव जाएगा. जब पीछे को ड्राइव जाता है सिर्फ पीछे को, तो वो कहता है रियर एक्सिल ड्राइव. सिर्फ आगे को जाता है, पीछे को नहीं जाता, फ्रंट एक्सिल ड्राइव. एक साथ चार पहिया को जाता है ड्राइव by means of two differential connected, उसे कहते हैं four wheel drive. Next is it provide better strength to the arrangement. Okay, as the wheel based frame is less in the dimensions, मतलब
लेंथ में कम है, उसकी उसी हिसाब से द अमाउंट ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट लेंथ ऑल्सो लेस, and it connected by means of light vehicles, four-wheel drive and vehicle. It provided strength to the vehicle by means of any type of deflection on the road. It will able to arrange completely by means of compensation, by means of adjust itself to provide a better strength and function to the vehicle. Next is two-piece type propeller shaft. Two-piece type propeller shaft means it will only used in the larger vehicle when there is not short transmission part. There is a long transmission part. जहाँ पे ज़्यादा ट्रांसमिशन का लेंथ होता है, जैसे ट्रक हो, बसेस हो, कैरेज व्हीकल्स हो, वो बड़े बड़े होते हैं, उनका व्हील बेस लेंथ बड़ा होता है, तो वहां पे शॉर्ट ट्रांसमिशन नहीं होता, तो बड़ा है तो उनके लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन बड़ा सा प्रोपेलर चाहिए। तो बड़ा प्रोपेलर के लिए क्या होता है ना, वहां पे 3 यूनिवर्सल जॉइंट होता है, 3 यूनिवर्सल जॉइंट है, वहां पे एक स्प्लाइन शाफ्ट है, मतलब स्लिप स्प्लाइन जॉइंट है एक, उसके बाद क्या है ना 2 ट्यूबुलर पार्ट है, उसका इमेज में मैं दिखाऊंगा। 2 ट्यूबुलर पार्ट मतलब 2 शाफ्ट कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सल जॉइंट, लास्ट में दोनों है। फर्क इतना है, मतलब सिंगल में क्या है ना, फ्रंट में और एंड में दो दो यूनिवर्सल जॉइंट है, और 2 पीस में क्या है ना, फ्रंट में एंड में तो है, लेकिन बीच में मिडिल में और एक यूनिवर्सल जॉइंट है। तो मिडिल में है तो 2 शाफ्ट है ट्यूबुलर शाफ्ट, और सिंगल पीस में एक। और सिंगल पीस में क्या है, शॉर्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है, लाइट व्हीकल में यूज किया जाता है, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं डबल पीस या 2 पीस टाइप ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। इसका काम क्या है, वो वही काम है जो सिंगल पीस करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है 2 पीस टाइप का, कि यहाँ पे काउंटर बेंडिंग जो फोर्स है ना, मूवमेंट, इसका सबसे कम है, तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम रोड में ये देखा जाता है कि जो ट्रक से बसेस है उनका प्रोपेलर शाफ्ट टूट जाता है। कार का या लाइट व्हीकल का प्रोपेलर शाफ्ट इतना जल्दी नहीं टूटता कंपेयर टू द ट्रक एंड बसेस, फॉर ओनली रीजन, मतलब ये चीज ड्राइवर के लिए होता है, क्योंकि जितना लोड चाहिए उससे ज्यादा लोड लेते हैं, और पिचेस में, हॉर्म्स में, स्पीड ब्रेकर में स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, जिसके लिए क्या होता है ना, जो बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग फोर्स पड़ता है प्रोपेलर शाफ्ट में, वो उसे रिसीव नहीं कर पाता, उसको वो जो स्ट्रेंथ ऑफ बेंडिंग मूवमेंट है वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। फॉर दैट पर्पज इट इज ओनली वन डिमेरिट ऑफ द 2 पीस टाइप ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट इज दैट इट्स नेवर carry or never control the larger amount of bending movement of bending force in it. For that purposes, the maximum time the buses and trucks, when they mislead the general instructions or general fundamental of automobile vehicle of carriage load, the propellers have just great breakdown. So this is the pictures. These are symmetric pictures of the propeller shaft. This is a single piece propeller shaft. Okay, single piece means what? One is journals. It gets connected by means of this yoke, fixed yoke या spline sliding yoke. This is only there for assembly. इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, ये असेंबली के लिए यूज किया जाता है, ये गियर बॉक्स में यूज किया जाता है, मतलब गियर बॉक्स की जो आउटपुट पार्ट है, आउटपुट शाफ्ट है, उसी चीज में ये कनेक्टेड करने के लिए यूज किया जाता है। जर्नल इसके अंदर आता है स्क्रीन और ये फिक्स्ड यॉक में। उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्क गैसेट है जो इसको कनेक्टेड करके रखता है, उसके एक डस्ट गैसेट मतलब एक वाशर टाइप चीज है। उसके बाद एक डस्ट कैप है जो डस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। ये तुम्हारा स्लिप जॉइंट स्प्लाइन है। स्लिप जॉइंट स्पाइन मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप से उसको स्लिप कहते हैं। स्पाइन का मतलब है जो आरो मार्क है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है वो अप एंड डाउन या ट्रू एंड फोर मोशन कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों कर सकता है। मतलब ये जो छोटा सा शाफ्ट है वो आगे और पीछे हो सकता है, ये कांस्टेंट फिक्स्ड शाफ्ट नहीं है। ओके, ये जो जॉइंट्स है ये जो शाफ्ट को क्या करता है ना, आगे पीछे करता है विथ मींस ऑफ व्हीकल की चेंजिंग इन द डायमेंशन और इन द मींस ऑफ एनी एंगुलर चेंजेस इन द रोड बाय मींस ऑफ डिचेस और हम्प्स। So at that time it adjust by means of itself to the only one arrangement slip joint spine. अगर ये नहीं होता तो प्रोपेलर शाफ्ट काम नहीं करता, कॉम्पेंसेशन टूल वो नहीं होता। अगर हम्प्स में तुम जाते या डिचेस में जाते तो क्या होता, वो प्रोपेलर शाफ्ट टूट जाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन इसी चीज के लिए एडजस्ट करता है। नेक्स्ट इज प्रोपेलर, इसको कहते हैं एक एनुलर शाफ्ट और एक सिंपल शाफ्ट। ओके, एक सिंपल शाफ्ट है, इसको प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं, जो अरेंजमेंट होता है स्लिप जॉइंट स्प्लाइन से। नेक्स्ट एट लास्ट में भी जॉर्नल है। जॉर्नल सिर्फ इसीलिए है, सिर्फ कनेक्टेड के लिए। ओके, जैसे हम फैन को कनेक्ट करने के लिए रबर कैप और वहां पे एक क्लैंप होता है, तो वो सिर्फ कनेक्शन के लिए होता है, वो फैन का एक मेजर पार्ट नहीं है। उसी प्रकार ये जो
कंप्लीटली स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो जॉर्नल्स और स्प्लिंट यॉर्क है ये सिर्फ उनका असेंबली पार्ट है, इसके इसी का हेल्प में वो असेंबली होगा बाय आउटपुट। ये साइड आउटपुट, लेफ्ट हैंड साइड आउटपुट पार्ट ऑफ द गियर बॉक्स में कनेक्टेड है। ओके, एंड प्रोपेलर शाफ्ट का जो आउटपुट शाफ्ट है वो राइट हैंड साइड प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्टेड है टू द पिनियन अरेंजमेंट टू द डिफरेंशियल। इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट, इट इज ए सिंगल पीस प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल डायग्राम ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। पहले जो ऊपर वाला चीज है ये तुम्हारा सिंगल पीस है, ये ओरिजिनल ऐसे ही ये दिखाई देता है। ओके, ये ओरिजिनल टाइप प्रोपेलर शाफ्ट है। इसका पहले जो दिखाया डायग्राम वो सिमेट्रिक डायग्राम है, इसको हम बनाए थे। ओके, तो प्रैक्टिकली वो कैसे दिखाई देता है? द फास्ट फिगर है, ये सिंगल पीस टाइप प्रोपेलर शाफ्ट है जो कार में यूज किया जाता है। यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड में है जॉर्नल के साथ यॉक, यहाँ पे यॉक है, जॉर्नल है। ये जो ब्लैक कलर चीज है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर है ये है तुम्हारा स्प्लाइन, मतलब स्लिप स्प्लाइन जॉइंट। यहाँ पे दो शाफ्ट है, अच्छे से देखना, यहाँ पे दो शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है छोटा सा, उसके बाद ये एक लंबा सा शाफ्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा स्लिप स्प्लाइन जॉइंट है, ये आगे पीछे हो सकता है। ये ब्लैक कलर, इसका मतलब वन स्लिप जॉइंट, वन स्लिप स्पाइन जॉइंट, टू यूनिवर्सल जॉइंट। लेफ्ट हैंड साइड में एक है एंड राइट हैंड साइड में एक है, और ये बीच वाला प्रोपेलर शाफ्ट है। तो ये तुम्हारा सिंगल पीस प्रोपेलर शाफ्ट है जो कार में यूज किया जाता है, 4 व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव में। नेक्स्ट इज ये जो सेकंड वाला है ये तुम्हारा ट्रक एंड बसेस में यूज किया जाता है, मतलब हेवी व्हीकल में। हेवी व्हीकल में जो यूज किया जाता है उसमें क्या है? 3 यूनिवर्सल जॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड में 1 यूनिवर्सल जॉइंट, राइट हैंड साइड में 1 यूनिवर्सल जॉइंट। नेक्स्ट ये बीच वाला में देखो एक यूनिवर्सल जॉइंट है सेंटर में, तो इसका मतलब 3 यूनिवर्सल जॉइंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 1 स्लिप स्पाइन जॉइंट है, बीच में देखो यहाँ पे 1 स्लिप स्पाइन जॉइंट है, और यहाँ पे 2 एनुलर और पीरियोडिक शाफ्ट दोनों है, कॉमन शाफ्ट 2 है। जैसे यहाँ पे एक था एनुलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ पे 2 है। ये एक पीस है, 1 पीस फर्स्ट 1 शाफ्ट, ये एक सेकेंड पीस है, सेकेंड शाफ्ट। तो दोनों को शाफ्ट मिला दोगे, ये दोनों प्रोपेलर शाफ्ट है, और टोटल ये 2 पीस प्रोपेलर शाफ्ट है। इसका नाम 2 पीस या डबल क्यों रखा गया? यहाँ पे 2 प्रोपेलर शाफ्ट एक अनदर यूनिवर्सल जॉइंट में कनेक्टेड होके है। तो ये कहाँ एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ किया जाता है? ट्रक, बसेस एंड हेवी व्हीकल। ओके, so this is the 2 original and practical picture of 2 type of propeller shaft, single piece and double piece, and this is the another symmetric diagram। इस कैसे इसको कनेक्टेड किया जाता है, एक एंगल से कनेक्टेड किया जाता है। वो एंगल कितना है? हुक जॉइंट में, हुक जॉइंट में जब पढ़ोगे, मशीन डिजाइन जब पढ़ा जाएगा, उसको समरेश सर पढ़ा रहे हैं, उनका वीडियो देखना। तो मशीन डिजाइन में जब वो हुक्स जॉइंट पढ़ाएंगे, 120 डिग्री से लेके 40 डिग्री के अंदर हुक जॉइंट काम करता है। तो 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री के अंदर ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है कनेक्टेड होकर रहता है, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता। ओके, ये अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ द व्हीकल इज वेरी अबाउट 20 डिग्री टू 40 डिग्री, एंड दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट, हाउ इट इज कनेक्टेड इन द व्हीकल। ओके, ये एक जॉइंट से, मतलब ये जो हुक जॉइंट था या यूनिवर्सल जॉइंट था, ये तुम्हारा ट्रांसमिशन शाफ्ट, मतलब ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स के बाद जो आउटपुट है वहां पे कनेक्टेड है। थोड़ा एंगल इंक्लाइंड होके ये तुम्हारा आउटपुट शाफ्ट, मतलब प्रोपेलर शाफ्ट का आउटपुट शाफ्ट डिफरेंशियल पिनियन में कनेक्टेड है। इट इज ऑल अबाउट द प्रोपेलर पार्ट सिस्टम। नाउ द बेटर अंडरस्टैंडिंग, गो फॉर द एनिमेटेड वीडियो। This animated video, there is 2 type of 2 universal joint. It is just get discharged by means of better understanding। ये बाहर वाला जॉर्नल है, भीतर वाला यॉक है। ये जो छोटा छोटा ऊपर घूम रहा है वो वाशर से या कॉर्क है या डस्ट कैप से, और बीच वाला प्रोपेलर शाफ्ट है। और स्प्लाइन जॉइंट दिखा देता हूँ फिर से, स्प्लाइन जॉइंट फिर से चला गया, स्प्लाइन जॉइंट यहाँ से दिखा देता हूँ फिर से। स्प्लाइन जॉइंट कौन सा है? ये टोटल प्रोपेलर शाफ्ट है सिंगल पीस, ये तुम्हारा स्प्लाइन जॉइंट है। ओके, ये वाला चीज जो है ना, ये तुम्हारा स्लिप स्पाइन जॉइंट है, जो भीतर ये वाला चीज स्लिप स्पाइन जॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोपेलर शाफ्ट का। इज ऑल कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट बाय मींस एनिमेटेड वीडियो। नेक्स्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। एडवांटेजेस क्या है? लो पावर लॉसेस, पहले से बोला था, बिकॉज द फ्रिक्शन लेस इज वेरी लेस,
there is no friction lining, friction plate, only connectivity are there by means of hook joint. Friction is less means power is less, and the efficiency is high by means of torque transmission. The weight of the shaft is less, the weight also very less because there is no complexity in the design. Next is construction is not very complex, जो मैं बता चुका हूँ, complex structure नहीं है तो weight कम होगा. उसके बाद सेफ पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में कोई लॉसेस ज्यादा नहीं होता और सेफ पावर ट्रांसमिशन होता है, बीच में कोई मतलब ब्रेक नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसमिशन होता है पावर का. लो नॉइज, इसमें कोई ज्यादा नॉइज नहीं होता, जैसे क्लच में गियर में नॉइज होता है, इसमें ज्यादा नॉइज नहीं होता है. नेक्स्ट इज इट इज ड्यूरेबल. ओके, इट इज ड्यूरेबल मीन्स व्हाट? ओके, उसका मेंटेनेंस का मैं पहला चीज, ड्यूरेबल चीज ये है कि उसको तुम मतलब कनेक्शन जहां पे है ना उसको ओपन करके वहां तुम लेके जा सकते हो उसको ठीक करने के लिए. अगर कहीं पे भी प्रोपेलर शाफ्ट खराब हो गया तो उसको तुम आराम से ओपन करके लेके जा सकते हो. ओके, पोर्टेबल भी है वो, मतलब गियर बॉक्स को ओपन करना और क्लच प्लेट सिस्टम को ओपन करना जितना डिफिकल्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट को ओपन करना उससे भी आसान चीज है. ओके, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज क्या क्या है, पहले से बताया था. डिसएडवांटेज ऑयल लीकेज होता है, जो लास्ट पॉइंट में लिखा हूं मैं, there may be a oil leakage problem at the spine. Okay, oil leakage problem क्योंकि every mechanical component they need lubrication. Okay, तो lubrication के हिसाब से क्या होता है ना, वहां पे जो 2-3 शाफ्ट है या एक शाफ्ट में स्प्लाइन शाफ्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक में जो शॉक ऑब्जर्वर है ना, वहां पे ऑयल सील्ड होता है, वहां पे भी जो ऑयल डाला जाता है ना, कभी कभी जब ब्रेक होता है ना वहां पे ऑयल लीक होता है. तो इसका वही प्रॉब्लम है, पहले जो मैं पढ़ा चुका हूँ ना, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लॉज सिस्टम में भी वही ऑयल प्रॉब्लम था, डिसएडवांटेज. दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज इन प्रोपेलर शाफ्ट इज ऑयल लीकेज टेक्स प्लेस. नॉट सुटेबल टू काउंटर बेंडिंग फोर्स, ये पहले से बता चुका हूं. काउंटर बेंडिंग फोर्स बड़े बड़े ट्रक्स में काउंटर बेंडिंग फोर्स के लिए ये सही नहीं है, मतलब लोड को देख के गाड़ी चलाना चाहिए. लोड से ज्यादा लोड लोगे, स्पीड से चलाओगे, अगर रास्ते में कोई डिचेस या स्पीड ब्रेकर आएगा, प्रोपेलर शाफ्ट टूटने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका कोई काउंटर बेंडिंग फोर्स ज्यादा नहीं है. तो इसीलिए गाड़ी चलाने से पहले कितना लोड लेता है उसको देख के गाड़ी चलाना चाहिए. नेक्स्ट इज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये पहले से बता चुका हूं, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोपेलर शाफ्ट, how it is function, different types of propeller shaft, advantage, disadvantage, and the means of animated video. In the next class we will study about, this is not the another part, never get confused. Okay, this is not the another part. In the transmission system after propeller shaft, the another part is differential, clutch, gearbox, propeller shaft, differential. But this is a subject that is important for it, which connected the propeller shaft to the differential, that is universal joint. That is the most important joints or hooks joints in machine design, also in automobile also. In automobile very little amount of things are there, but in machine design details will going to get studied. So next class, be stay tuned for the next class. Thank you very much from the today.